begin, judges? Yes. भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जो सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग है। मैं उस भारत से आती हूँ जो कभी वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांतों पर जीता है तो कभी कर्मण्यवाधिकारस्ते गाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपूत सन्यासी हो जाता है। मैं मणिकर्णिका के भारत से आती हूँ जहाँ राज्य हित के लिए एक विधवा माँ रानी लक्ष्मीबाई बन जाती है। पढ़ो हमारा इतिहास और पहचानो हमें। हम चमचम करती 57 की तलवारों की नोक बने, हम हल्दी घाटी के राणा के भाले की वो नोक बने, हम गीत बने संगीत बने, शब्दों के गहरे छंद बने, इतिहास शून्य का दे करके नव सृष्टि के प्रण बने। A very pleasant morning to one and all present over here. This is Simran speaking on the topic Ek Bharat Viksit Bharat at 2047 at the completion of 100 years of independence of Bharat. Well, when I contemplate on this topic, I see inclusivity and unity. People who drink water in Bengal, it comes from the Himalayas. People experiencing rainfall in Mumbai are the clouds that are coming from Gujarat, and we have the second largest network of roads in the world thanks to the 6% taxpayers of this nation. Well, Acharya Chanakya has rightly said in Arthashastra, Trinam laghu trunatulam tuladapi jayachakaha vayuna kimna nitiso mamayam yacha yashati. That is, in order to increase our self-relevance, we must minimize our dependence on others and become self-reliant. And India, in the light of this quote, in the past 2 decades has been able to grow rapidly due to domestic demand, because it was when we decided to buy diyas from our nearest kumhar. It was when we, instead of buying foreign brands, prioritized our new khadi fashion brands. It was in that moment only when the juggernaut of our Indian economy took pace like a javelin thrown by the gold medalist Neeraj Chopra, and hence withstanding our pran of Viksit Bharat. And not only this, from Rajya Pad to Kartavya Pad, from bidding farewell to British cross sign to statue of Netaji in place of King George V, India has certainly entered the decisive phase of Amritkal, shedding the vestiges of colonial past and colonial mindset. And when I talk on how our culture is connected to our economy, how can I not talk about Char Dham, about Golden Temple, about Haji Ali Dargah, about the beautiful churches of Goa, demonstrating secularism enshrined in the preamble of our constitution by 42nd Constitutional Amendment Act 1976 and contributing around 6% to the GDP of India. And through this podium, I would like to say to all of you beautiful people sitting over here, that idea begins with an I, just like India begins with I. And honorable judges, in the same manner, development efforts begin with self. And in this Amritkal, Ek Bharat, Viksit Bharat has to be built through Sabka Saath, Sabka Prayas or Sabka Vishwas. Well, delving ahead, it is rightly written in Atharva Ved, Kritam me dakshine haste jayo me sabya ahita. That is, if we do our duty, our success is assured. My dear friends, we are given total 6 fundamental rights and total 11 fundamental duties under part 3rd and part 4th of the Indian Constitution. And let me tell you all, rights and duties go hand in hand. Now how? If government is responsible to provide us electricity, then we, as responsible citizens of India, should awake, arise and save as many units of electricity as possible. Honorable judges, if government strives hard to fulfill the promise of Har Khet Ko Pani, then I firmly believe that every farmer of this nation should awake, arise and focus on more crop per crop, and when this would happen, our Bharat Varsha would definitely arise. Well, this phrase of Ek Bharat reminds me of the lines by Jyotirindranath Tagore. Chol re chol bharato shrantan, mathrubhumi kore ahvan, virodar pe, porush karbe, shad re shad dishe kanya.
That is, motherland India is beckoning all the children of Bharat to keep moving forward together and aspire for the welfare of the nation. Honorable judges, patriotism gives birth to a thoughtful mindset. And a thoughtful mindset inculcates a rational perspective towards varied sections of India. And when I say varied sections, I refer to our SC, ST, OBC, LGBTQ plus communities. I refer to our female sections, our tribal sections, our people with disabilities, our Muslim clan, our social inclusion, our. So let's together promote branding of Himsagar mangoes of Bengal and Gulabi Meenakari of Banaras. Let's become vocal for Gujarat's Kadalya shawl and Khaja of Goa. Let this time our homes be adorned with Bihar's Madhubani painting and Tanka painting of Arunachal. Let this time our NRI friends be gifted Telangana's Pochampalli Ikat Sari or Kathobai handloom fabric made with Meraki by the tribals of Odisha. And last but not least, let us, the 1.3 billion Indians, raise their 2.6 billion hands in solidarity, and let's do what Indians are born to do, to build love, to build respect, and to generate peace. And with this, I end my say. Jai Hind, Jai Bharat. Sambhav Pratap. Of a civilization which gave the world everything, knowledge from Nalanda, knowledge from Takshila. Story of a civilization which had a lot to give and never took anything in return. But with time, the civilization lost its riches, lost its greatness. But my friends, Bharat is rising. The tides are turning again. Bharat is rising, it's standing tall, and it's ready to jump high in the sky, to take a quantum leap. It's ready to grab the world. It's ready in its Amrit Kaal. Ladies and gentlemen, brothers and sisters and honorable jury members, history gives every nation a period of opportunity. It is a period of era of elixir, a period of Amrit Kaal. It is in this period the nations makes a quantum leap in their developmental journey. It is this period wherein the growth of nation is exponential. The next 25 years for Bharat will be the Amrit Kaal for Bharat. According to the Vedic astrology, it is this Amrit Bharat of my vision, where people will be safe and walk freely on roads. Bharat will be a place where there is freedom of equality for everyone. Bharat will be a country where medical treatment is cheaper. Bharat will be a country where schooling will be mandatory for all. Bharat will be a country where there is no such word as corruption. Bharat will be a country where every competent person is employed. Bharat will be a country with astounding infrastructure. Bharat will be a country with abundance of knowledge and skills. Bharat will be a country where foreigners will die to invest in. Bharat will be a hunger-free country with zero poverty. Bharat will be a country with lively air, with an aura no one has ever experienced. Bharat of my vision will be an ideal country. When we speak of Mera Bharat Viksit Bharat, there must be 3 C's that should be focused upon. That are culture, consciousness and competence. From Bharatmala Pariyojana to Awas Yojana, from Govardhan that promotes waste to wealth to PM Pranam that worships the Mother Earth. From Amrit Dharohar which promotes wetlands to Panchamrit focusing on green growth. The youth, us youth, the Amrit Pidi which is the future of Bharat with developing skills and encouraging Bharatiya way of thinking. So that by the end of this Amrit Kaal, we can proudly stand out in front of the whole world as Bharatiya, putting out our originality that has somewhere been missing since the last 75 years. So if we have to look at the next 25 years, what this journey must represent to us is a re-education and a rediscovery and a reawakening of culture, consciousness and competence. When we speak of transition from India to Bharat,
It is a transition from being a look-alike or a duplicate to something that is original. आजाद भारत तो पा लिया, अब 2047 में विकसित भारत पाना है। युवा पीढ़ी को भारत को विकसित बनाना है, भारत को विकसित बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम शिवानी थपलियार है और मैं दिए गए विषय पर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हुई। मेरा भारत विकसित भारत 2047। यह स्वप्न केवल मेरा या आपका नहीं, अपितु भारत माता का स्वप्न है, करोड़ों भारतवासियों का स्वप्न है। और इसी स्वप्न का जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने 5 प्रणों में से एक प्रण में भी करा है। और महोदय, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को जब हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने ही वाले हैं, तो आज उनकी कही एक बात को याद करते हैं। विवेकानंद जी का मानना था कि जिस राष्ट्र के पास युवा शक्ति हो, उस राष्ट्र का भविष्य उज्जवल और विकास सरल हो जाता है। इस बात को समझने के बाद जब मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की वर्तमान वास्तविकता देखी, तो मैंने पाया आज सबसे ज्यादा युवा शक्ति भारत के पास है। भारत की लगभग 66% जनसंख्या युवा जनसंख्या है, अर्थात अब भारत को विकसित बनाने का जिम्मा इन्हीं युवाओं के कंधों पर आता है। और महोदय, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है भारत और भारत के युवाओं का आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक विकास। सर्वप्रथम बात करते हैं आर्थिक विकास की। आजाद होने के बाद से ही भारत ने काफी लंबा समय तय किया है। सन 1700 में अंग्रेजों के आने से पूर्व वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कुल 24.4% था। अपितु अंग्रेजों के उत्पीड़न के पश्चात यह योगदान घटकर 1950 में मात्र 4.2% हो गया। इतने सालों की मेहनत के बाद अब वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह योगदान 7.75% है। महोदय, जिन अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक अपना गुलाम बनाए रखा, हमारे साथ अन्याय और अत्याचार करा, आज उन्हीं अंग्रेजों को पीछे छोड़ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज भारत ना जाने कितने ही रचनात्मक विचारों का एक घर बन चुका है। फिर चाहे मैं बात करूं तिलक मेहता की, जो मात्र 13 साल की उम्र में 13 करोड़ की कंपनी के मालिक बने, या महोदय मैं बात करूं अलक पांडे अर्थात फिजिक्स वाला की, जिन्होंने यूट्यूब के माध्यम से ज्ञान का संचार शुरू करा और आज इतने सफल हो गए। ज्यादा दूर ना जाते हुए मैं आपको एक उत्तराखंड का उदाहरण देती हूँ। उत्तराखंड की बेटी दिव्या रावत, जिन्हें आज सारा भारत मशरूम गर्ल के नाम से जानता है, क्योंकि इन्होंने मशरूम की खेती कर सफलता हासिल करी। इन सभी उदाहरण से आप सभी को एक बात तो समझ आ गई होगी कि आज भारत का युवा केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि ना जाने कितने ही लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न कर रहा है। यदि इसी तरह हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ती रही, तो महोदय मैं सुनिश्चित करती हूँ कि सन 2047 तक यह भारत सारे विश्व के सामने विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। अब तकनीकी क्षेत्र की बात करते हैं। महोदय, जब मैं इस क्षेत्र को देखती हूँ तो मैं पाती हूँ कि भारतीय युवाओं की इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा रुचि है। जब मैं देखती हूँ बिहार के युवा वैज्ञानिक गोपाल जी को, जिन्होंने मात्र 13 साल की उम्र में केले के पेड़ से बिजली पैदा कर दी। जब मैं देखती हूँ अरुणाचल प्रदेश के 11वीं कक्षा के छात्र आनंद को, जिन्होंने नेत्रहीन लोगों के लिए चश्मे का आविष्कार करा, तो वहीं दूसरी ओर है तमिलनाडु के रिफात चारू, जिन्होंने केवल 18 वर्ष की उम्र में विश्व की सबसे छोटे उपग्रह अर्थात सैटेलाइट को बनाकर दिखाया। इस तरह ना जाने कितने ही उदाहरण हैं जो मेरी इस बात को सिद्ध करते हैं महोदय कि आज भारत की तकनीकी प्रगति के पीछे बहुत बड़ा हाथ युवा पीढ़ी का भी है। चाहे फिर हम बात करें डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव में इंटरनेट पहुंचाने की, डीप ओशन मिशन, चंद्रयान 3 या भारतीय रेलवे का आधुनिकीकरण, वंदे मातरम, बुलेट ट्रेन इत्यादि। यदि इसी तरह हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ती रही, तो भारत को विकसित बनाने हेतु तकनीकी क्षेत्र में वह अपना पूरा योगदान दे पाएगी। महोदय, भारत की सामाजिक स्थिति को समझते हैं। भारत का साक्षरता दर 1950 में 18.3% से आज 78% हो चुका है। महिला साक्षरता दर मात्र 8.9% से आज 70% हो चुका है। और जब मैं बात करूं युवा और समाज की, तो हम सभी जानते हैं जब समाज में अन्याय या अत्याचार हुआ, तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए युवा पीढ़ी सबसे आगे खड़ी रही है। ये वही युवा शक्ति है जो कभी निर्भया की आवाज बनी, तो महोदय कभी जोमेटो बॉय को न्याय दिलाने का साधन। किसी भी देश के विकसित होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है समाज में सुधार आना।
आज भारत को भी उसी समाज सुधार की जरूरत है और इस कार्य को भारत की युवा पीढ़ी कर सकती है, क्योंकि हम ही तो भारत का भविष्य है। हमें आज सुनिश्चित करना होगा कि हम कोशिश करें भारत के समाज में व्याप्त हर कुप्रथा, हर कुरीति को जड़ से उखाड़ फेंकने की। ये कार्य कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं, क्योंकि भारत के युवा तो हमेशा से साहसपूर्ण रहे हैं। इस बात को तो खुद इतिहास बताता है। याद करिए वह समय जब अंग्रेजों ने सत्ता हड़पने की नीति बनाई थी, तब सबक सिखाने सामने आई रानी लक्ष्मीबाई थी। जब असेंबली में बम फूटने के बाद सारा भारत झूमा था, तब भगत सुखदेव राजगुरु ने फांसी का फंदा चूमा था। हमें जरूरत है कि हम अपने इतिहास से सीख लें, हम अपने पूर्वजों से सीख लें। उन्हीं के त्याग और बलिदान के कारण आज हम सभी आजाद भारत में खड़े हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। अब जरूरत है कि हम सब मेहनत करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी विकसित भारत में खड़ी हो। अतः इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि भारत ने काफी लंबा सफर तय कर चुका है। अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। जरूरत है कि हम सभी एक दूसरे का साथ दें और सन 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में सारे विश्व के सामने खड़ा करें। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं युवा पीढ़ी को केवल एक संदेश देना चाहूंगी। छाकर तुम आसमान में रवि सा यूं प्रकाश करो, छाकर तुम आसमान में रवि सा यूं प्रकाश करो, देश को नई ऊर्जा दे, उन्नति अब ललाट करो। फूलों से तुम महक उड़ाकर मेहनत का आगाज करो, भारत को विकसित बनाने हेतु मिलकर सब प्रयास करो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यह भी सही वह भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मांगूंगा। अटल जी की ये पंक्तियां आज न केवल मेरे पूर्ण वक्तव्य का सार हैं, अभी तो महोदय ये पंक्तियां दर्पण है भारतीय युवाओं की सोच एवं सक्षमता। सभागार में उपस्थित सभी माननीय श्रोतागणों को मेरा विनम्र नमस्कार। मैं महक भंडारी सदन द्वारा दिए गए विषय के ऊपर अपने विचार लेकर प्रस्तुत हूँ। 15 अगस्त 1947 जब भारत आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री ने पूर्ण सभा के सामने एक गौरवशाली देश के स्वप्न के ढांचे को प्रस्तुत किया जिसकी नींव युवा थे। और फिर 15 अगस्त 2022 प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वो 83 मिनट का भाषण उसी ढांचे को एक रूपरेखा देता है और आगामी 25 वर्षों एवं अमृतकाल का एक मानचित्र तैयार करता है जिसकी सीमाएं 5 प्रणों से रेखांकित की गई। महोदय, जहां पहला प्रण था विकसित भारत का, दूसरा गुलामी की हर सोच से मुक्ति का, तीसरा अपनी विरासत पर गर्व करने का, चौथा एकता एकजुटता का और 5वां प्रण सहृदय कर्तव्य पालन का। और ये पांचों ही प्रण युवाओं के साथ मिलकर इस चुनौतीपूर्ण अमृतकाल में भारत को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। और विकसित भारत की यात्रा तो तभी अपने दूसरे चरण में पहुंच गई थी जब 2001 में स्वर्णिम चतुर्भुज न केवल दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना और फिर 2001 में इन्हीं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया जिसके चलते स्कूल ना जाने वाले बच्चों की संख्या 60% से घटी। महोदय, 2020 में नई शिक्षा नीति अपनाई गई जिसके चलते युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर ले जाया गया व प्रत्येक की क्षमता के विकास पर जोर दिया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में तो लाखों छात्र छात्राओं को किफायती व उच्च शिक्षा प्रदान की, बल्कि युवाओं के समक्ष एक सशक्त उदाहरण भी रखा। पर प्रश्न ये आता है कि मैं सभा में क्यों युवाओं की शिक्षा की बात कर रही हूँ, मैं इस सभा में क्यों शिक्षा पर चर्चा कर रही हूँ। तो महोदय, जब हम भारत को अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखते हैं, जब हम भारत की बात करते हैं, जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, जब हम $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें सकल घरेलू उत्पाद व राष्ट्रीय आय अहम भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी यानी रोजगार, और रोजगार कब? जब व्यवसाय व कोऑपरेट स्थापित होंगे और यही व्यवसाय निर्भर करता है उत्पादन पर। और महोदय, उत्पादन सीधा मेक इन इंडिया पर, और मेक इन इंडिया की कामयाबी निर्भर करती है हमारी आधारभूत संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पर गौरतलब बात तो यह है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 2024 से 2030 के बीच 133 ट्रिलियन निवेश करने की योजना तैयार है। साफ शब्दों में कहने का अर्थ यह है कि भारत पूर्ण रूप से तैयार है विकसित बनने के लिए। भारत पूर्ण रूप से तैयार है $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में, क्योंकि सिर्फ भारतीय सरकार ही नहीं, भारतीय युवा भी अग्रसर है। वो रोजगार का सृजन करने वाला बन रहा है। तब चाहे वे 17 वर्षीय तिलक मेहता के पेपर्स एंड पार्सल के संस्थापक बन हजारों को रोजगार देना हो, या ओयूम के संस्थापक 29 वर्षीय रितेश अग्रवाल की कहानी हो। तब चाहे वो फाल्गुनी नायर बन नायका जैसी व्यापारिक संगठन तैयार करना हो, या महोदय तब चाहे वह पुलवामा से लेकर गलवान की घाटी तक देश की रक्षा का प्रण लेना हो, भारतीय युवाओं ने यह दिखाया है कि वे भारत को विकसित बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। अब मेरा विपक्षी दल
जो कहीं ना कहीं इसकी निंदा कर रहा होगा तो शायद उन्हें ये ज्ञात नहीं कि वह स्वयं पूर्ण सभा में अपनी सक्षमता पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि भारत के लोकल रोज ग्लोबल के तहत भारत ने जुलाई 2021 में अपने लक्ष्य का 33% आयात हासिल कर लिया है। शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि भारत ने 2020-2021 में अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था 5 करोड़ से ऊपर कर दी। महोदय, शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि अभी हाल ही में हमारे बिहार के बेटे को केले के तने से बिजली का उत्पादन करने के लिए भारत के सबसे छोटे साइंटिस्ट का दर्जा दिया है। शायद उन्हें ज्ञात नहीं कि हमारी अपनी भूमि देवभूमि उत्तराखंड की बेटी दिव्या रावत ने न केवल मशरूम के उत्पादन से हजारों को रोजगार दिया बल्कि उनको राष्ट्रपति ने नारी शक्ति का पुरस्कार भी दिया। और ये सारे ही उदाहरण मेरे विषय को अपने चारों ओर घेर कर ये कहते हैं, यह चिल्लाते हैं कि हाँ, भारत विकसित बन रहा है, हाँ, भारत एक विकसित भारत की सीढ़ियों पर चल रहा है। धन्यवाद। Now I would like to invite Shivani into her stage as well, because we were just over there, and to be very honest, there is no name over here as well. So the second rank has been confirmed by Shivani. And the very most important now, that a person who will be representing the business industry, that will be have a patient effect. Definitely, it's a strong lesson from all ends of the I think you have to be on the stage. So I would like to invite and congratulations for the first time. I think the presentation must stop. Congratulations all the winners.